Hello, good morning, namaste दोस्तों. I hope you're doing well. My name is Yash Parik. Welcome to my channel Safarnama with Yash. So welcome to another episode from the Arunachal Pradesh travel series. आज का प्लान ये रहेगा कि we'll be exploring तवांग and the local sightseeings in तवांग. हम लोग 2 दिन से तवांग रुके हुए हैं. आज हमारा लास्ट डे है तवांग में. सो हम लोग यहाँ की लोकल साइट सीइंग जो भी तवांग मॉनेस्ट्री एंड देन बुद्धा स्टैचू एंड लाइट एंड साउंड शो वो सब आज कवर करेंगे. एंड देन टुमारो विल लीव फ्रॉम तवांग to Dirang, and Dirang में night stay करके then Guwahati, then Delhi and then Ahmedabad. So trip is in the last phases, last couple of days of the trip. So we'll try कि enjoy करें as much as possible. फ़िलहाल वेदर की बात करें तो it is cloudy today. आज थोड़ी ठंड भी ज़्यादा लग रही है. सन है बट क्लाउड्स काफ़ी ज़्यादा है. उस साइड पीक्स के ऊपर काफ़ी क्लाउड्स दिख रहे हैं. तो इट्स गोइंग टू बी अ कोल्ड डे ऐसा फीलिंग आ रही है. अब पता नहीं अगर सेकेंड हाफ में सन बाहर आ जाए एंड इट बिकम सनी. सो दैट बीइंग सेड अभी फ़िलहाल चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं एंड देन हम लोग आज का दिन स्टार्ट करते हैं. लेट्स गो. सो तवांग एक्सप्लोरेशन पे निकलने से पहले लेट मी शेयर विथ यू दिस अमेजिंग बैकपैक फ्रॉम Zook. Whether you are a student, a professional or an adventurer, this backpack is designed to meet all your needs. The backpack is made from high quality, water resistant materials ensuring durability and style. The sleek design makes it perfect for any occasion from school to work to travel. Storage is where this backpack truly shines. It features a spacious main compartment with a padded laptop sleeve that fits up to a 15.6-inch laptop. There are multiple pockets for your essentials from books and gadgets to water bottles and snacks. The padded shoulder straps and ergonomic back support ensures that you carry your belongings with ease even on the longest days. Adjustable straps allow you to customize the fit to your liking. One of the best things about this backpack is its versatility. Whether you're commuting to work or setting up at a cafe, this backpack adapts to your lifestyle seamlessly. Check out the link in the description to get yours today and experience the difference. And don't forget to use the code mentioned below for an exclusive discount. सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं चकजम ब्रिज. दैट इज़ द ब्यूटीफुल चकजम ब्रिज. वो नया ब्रिज एक बनाया हुआ है एंड ये एक ओरिजिनल ब्रिज है. सो द स्टोरी बिहाइंड दिस ब्रिज इज़ दैट ये 600 ईयर्स से भी ज़्यादा पुराना है एंड द रिवर फ्लोइंग डाउन इज़ द तवांग चू रिवर जो कि इसके ऊपर बनाया हुआ है. एंड जो फर्स्ट दलाई लामा थे उनके डिसाइपल थे थैंगटोंग करके, उनने ये ब्रिज बनाया था. इट इज़ मेड ऑफ आयरन स्टील एंड आई थिंक अरुणाचल में 2 ही ब्रिज है जो अभी भी स्टिल एग्जिस्ट करते हैं एंड दिस इज़ वन ऑफ देम. सो ये आयरन के जो चेन्स हैं जो इस ब्रिज को होल्ड कर रहे हैं. किसको जाना है, किसको आना है? एक सोलो guys all set to cross this bridge. धीरे धीरे इधर खड़ा वीडियो चल रहा है किधर ना. So guys, this is the new bridge. वो जो था जो हमने क्रॉस किया that was the old bridge. Wow, beautiful.
So guys, we've reached the Buddha statue in Tawang. That is a beautiful Buddha statue. Look at those peaks on the back, everywhere, very beautiful. And there, if you see, that is the Tawang monastery. आज का हमारा probably next stop रहेगा. तो आफ्टर हैविंग लंच एट टेस्ट ऑफ तवांग रेस्टोरेंट इन द मेन मार्केट, हम लोग अब जा रहे हैं तवांग मोनेस्ट्री की तरफ. वेदर एकदम क्लाउडी हो चुका है. ऑल्दो बारिश का कोई फोरकास्ट नहीं है, बट इट इज़ कोल्ड राइट नाउ. तो टेम्पो ट्रैवलर की तरफ चलते हैं. Hai, Nyaza. Hi. Say hi. Hai, Nyaza. Bye bye, Nyaza. Bye bye. Izin. Hai, Nyaza. Bye. So guys, we've reached तवांग monastery and weather कुछ इस तरह का है अभी. देखो ये देखो उतना स्पॉट में सनलाइट आ रही है. याद पक्का बारिश हो गया. कुमला पास में स्नोफॉल हो रहा है. So Tawang monastery is more than 400 years old and it is the largest monastery in the country. So काफ़ी हिस्ट्री जुड़ी है इस जगह के साथ एंड दिस मोनेस्ट्री इज़ ह्यूज. आपको इधर से समझ नहीं आएगा, बट अगर आपने इसका अरुणाचल का कहीं से भी जो एरियल शॉट है या कहीं भी सिटी का शॉट देखा होगा तो वहाँ पे दिखेगा कि ये मोनेस्ट्री में काफ़ी लेवल्स हैं. एक अभी जैसे अपने एंटर करेंगे तो ये एक ऐसे ऐसे लेवल्स बने हुए हैं एंड दिस अ ह्यूज मोनेस्ट्री. सो चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कैसा है. सो गाइज इट्स ऑलमोस्ट 6 एंड सनसेट काफ़ी जल्दी हो जाता है यहाँ पे एंड इट हैज़ बिकम वेरी क्लाउडी. तो अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा क्लाउडी है एंड स्नोफॉल तो ऊपर हो ही रहा होगा एंड चांसेस है यहाँ रेनफॉल भी हो जाए, बट ठीक है. सो अभी हमारा प्लान अब ये रहेगा दैट वी विल गो टू द लाइट एंड साउंड शो एंड प्रॉब्ली आफ्टर दैट we'll get back to the hotel and tomorrow morning we'll leave from Tawang to reach Dirang via the new tunnel which is been built to bypass the Sela Pass. So ये plan रहेगा. I will let you guys enjoy the light and sound show. Bye bye, take care. ये हिंदुस्तान की सरजमीन का वो हिस्सा है जिसकी सूरज सबसे पहले कदम उसी करता है. प्राकृतिक सौंदर्य से आभूषित हमारे देश का गौरव, हमारे देश की पहचान. हिंदुस्तान और सिर्फ हिंदुस्तान. तवांग की स्थानीय जनजाति की मोनपा संस्कृति के पारंपरिक नृत्य संगीत से. हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते दोस्तों. ऑलमोस्ट द लास्ट डे ऑफ आवर अरुणाचल ट्रिप, मतलब लास्ट प्रोडक्टिव डे. आज हम तवांग से निकल के दिरांग जाएंगे एंड ऑन द वे विल विजिट कपल ऑफ स्पॉट्स जिनके बारे में मैं आगे बताता हूँ. एंड बाकी फिर उसके बाद दिरांग टू गुवाहाटी, वेरी लॉन्ग जर्नी एंड देन गुवाहाटी टू अहमदाबाद वाया फ्लाइट. तो वो सब रहेगा. बाकी इट इज़ अ सनी डे टुडे एंड दोज आर द ब्यूटीफुल हिमालयाज माउंटेन्स. वाओ, कल भी लग रहा है फ्रेश स्नोफॉल हुआ है. दैट बीइंग सेड, हमारा टाइम हो चुका है. सब टेम्पो ट्रैवलर में बैठ गए हैं, सामान लोड हो गया है एंड वील जस्ट लीव. So for the first stop of the day, that was the Jung Waterfalls, मैंने अपनी राइड चेंज कर ली एंड भाटिया भाई को बाइक पे ज्वाइन कर लिया.
सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं जंग फॉल्स। ये एक छोटी सी हाइक है, हम लोग नीचे जा रहे हैं एंड वहाँ से अगर दिख रहे हो तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है जंग फॉल्स। तो ये जो जंग फॉल है इनकी हाइट 100 मीटर है एंड 100 मीटर ऊपर से गिरते हैं। एंड द रिवर दैट फ्लोज हियर इज़ द नूरारंग रिवर, दैट इज़ द नूरारंग रिवर। सो अभी प्रॉपर ग्लिम्स नहीं मिला है जंग फॉल्स का। चलते हैं नीचे एंड लेट्स लुक एट दिस ब्यूटी। दिस लुक्स रियली मैजेस्टिक। ओह वाओ, ये विंटर के बाद का फ्लो है, तो कैन यू इमेजिन मानसून के बाद का क्या रहता होगा। वाओ ब्यूटीफुल। गाइस इट वाज अमेजिंग। ये फॉल्स का बाप रे, इतनी क्लोज पेरीफेरी में इतना ज़्यादा पानी गिर रहा है ना, मतलब पूरे गीले ही हो जा रहे हैं हम लोग। तो मुश्किल से टर्न्स मार मार के ऐसे हमने शॉट्स लिए हैं। बट दिस प्लेस इज़ अमेजिंग। आई एम मिसिंग माई ड्रोन यार, आई एम रियली मिसिंग माई ड्रोन। कोई नहीं, वहाँ पे चलते हैं, लेट्स हैव समथिंग एंड लेट्स चिल बाय द रिवर साइड। सो जंग फॉल से निकलने के बाद our next stop was the Jaswantgarh War Memorial. So guys, reached the Jaswantgarh Memorial. So guys, this is the Chinese graveyard जहाँ पे चाइना के जितने सोल्जर्स थे उनकी डेथ हो गई थी, तो वो लोग ने क्लेम नहीं की थी उनकी बॉडीज़। सो इंडियन आर्मी ने उन्हें इज्जत देते हुए यहाँ पे पूरा ग्रेवयार्ड बना है, यहाँ पे उन्हें बरीड किया है। सो गाइस, दैट इज़ अ 1962 बंकर। उसमें हुआ था ऐसा कि चाइना के जो थे वो MMG ऑटोमेटिक गन लेके फायरिंग कर रहे थे। तो जसवंत सिंह ने, उनके पास वो लोड करने वाली गन थी, तो उन्होंने फिर उन चाइनीज़ पे अटैक कर दिया एंड वो MMG ले ली। एंड उसके बाद वो अलग अलग बंकर से अटैक करते थे सो दैट उन चाइनीज़ सोल्जर्स को पता ना चले कि वो अकेले यहाँ पे। एंड उन्होंने इस तरह से 72 आवर्स तक 300 चाइनीज़ सोल्जर्स को मारा एंड इंडियन आर्मी को सपोर्ट दिया। फिर उसमें हुआ ऐसा था कि चाइनीज़ आर्मी जो थी वो 72 आवर्स बाद इन्होंने अपनी हार मानी एंड उन्हें वीर गति प्राप्त की। एंड उसके बाद चाइनीज़ सोल्जर्स बॉम्बडिला तक पहुंच गए थे। एंड फिर आगे हुआ ऐसा कि वो लोग की क्वांटिटी मतलब बहुत ज़्यादा नंबर में थे, 80,000 ऑलमोस्ट सोल्जर्स आए थे। तो उस तरह से फिर इंडियन आर्मी ने सियाचिन में चाइना पे अटैक कर दिया। तो वो ट्रीटी फॉर्म हुई कि वो लोग ने अपनी आर्मी, इंडियन आर्मी ने सियाचिन से पीछे ली आर्मी एंड चाइना ने इधर बॉम्बडिला से पीछे ली। बट अगर वो ऐसा नहीं हुआ होता तो वो लोग गुवाहाटी तक भी पहुंच जाते हैं। हमारा जो पॉइंट है जो ईस्ट और मतलब ईस्ट और हमारे इंडिया को कनेक्ट करता है, वो पॉइंट अगर कट ऑफ हो जाता तो पूरा ईस्ट हमारे हाथ से चला गया होता। सो दिस इज़ बेसिकली द स्टोरी ऑफ दिस प्लेस। अभी बंकर देखने चलते हैं नीचे एंड ये उनका स्मृति स्थल है। सो इस तरह का ये पूरा जगह बनती थी ऐसे, जिसके थ्रू अटैक्स होते थे। एंड दिस इज़ द बंकर। अभी 2-3 बंकर बनाए हुए हैं। हेलो, ये हमारा बंकर गार्ड कर रहा है। ओह, जसवंतगढ़ वॉर मेमोरियल से निकलने के बाद वी वर ऑन आवर वे टू दिरांग थ्रू द सेला टनल। गाइस हम लोग पहुंच गए सेला टनल। अभी आपने देखा होगा 2 रास्ते पड़ते थे, एक सेला पास है
उस तरफ सेला पास है, 2 माउंटेन्स के बीच में पूरा जो पास है सेला पास है, एंड दिस इज़ अ सेला टनल। तो ये सब टनल बनाई गई थी बिकॉज सेला पास में स्नो बहुत ज़्यादा होती है, तो आर्मी के लिए एक्सेसिबल नहीं रहता तवांग आना, तो ये टनल बनाई रही थी ताकि एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाए। एंड दिस टनल इज़ अभी तो 1.5 किलोमीटर की है, देन बाद में ओपन हो जाता है, देन वापस एक टनल आती है, तो जिसको पूरे को सेला टनल ही बोलते हैं। एंड दिस इज़ एट 13,000 फीट, एंड वेदर काफ़ी ठंडा हो गया है। इट हैज़ गॉटन वेरी क्लाउडी। वहाँ पे पक्का स्नोफॉल हो रहा है सेला पास पे। अगर हम आज सेला पास जाते तो हम पक्का स्नोफॉल मिलता। शाम होते होते हम दिरांग की प्रॉपर्टी पे पहुंच गए एंड वी वर सो टायर्ड दैट वी जस्ट स्लेप्ट एंड एंडेड द डे। गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मॉर्निंग इन दिरांग। अभी टेम्परेचर हो रहा होगा 11-12 डिग्री एंड इट इज़ वेरी वेरी प्लेजेंट एंड द व्यू फ्रॉम हियर इज़ ब्यूटीफुल। दिरांग काफ़ी नीचे है, मतलब एज़ कम्पेयर टू तवांग, सो यहाँ पे स्नोफॉल वोफॉल नहीं होता। इट इज़ जस्ट रेनफॉल जो मानसून में होता है। इन 10 मिनट्स विल लीव फॉर गुवाहाटी एंड आज का बहुत लंबी जर्नी है, हमें ऑलमोस्ट 10 आवर्स हो जाएंगे गुवाहाटी पहुँचते पहुँचते। टुमारो वी हैव अ फ्लाइट टू अहमदाबाद, तो कल रात तक अहमदाबाद पहुँचेंगे। सो दिस ट्रिप इज़ एंडिंग राइट नाउ, मतलब आज के बाद अभी कुछ विल नॉट कवरिंग एनी स्पॉट्स और एनीथिंग। सो that being said, I'll take the leave and end this Arunachal Pradesh travel series. I hope I helped you to plan your trip well, and I made you see the locations, how beautiful Arunachal is, and I hope मैं आपका मन बना पाया कि आप लोग जल्दी travel करो। I hope you enjoyed this travel series and subscribe and follow for more such content। काफ़ी सारा कुछ करते रहेंगे, अगली ट्रिप भी soon planning phase में चली जाएगी। So goodbye guys, take care, bye bye। So after leaving from Guwahati from Dirang, we stopped on our way at the ancient village of Thembang.